अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लल्लाह। अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लल्लाह। अशहदु इलाहुल्लल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ यह हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় বন্ধুগণ, আজকের ভিডিওতে আপনাকে এমন একটি ভিডিও শেয়ার করতে চলেছি যে ভিডিওটি দেখে আপনি সত্যি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। প্রিয় বন্ধুগণ, আজান নিয়ে এই হিন্দু ব্যক্তির খুবই অ্যালার্জি রয়েছে। তিনি আজান শুনলে সেটিকে কানের মধ্যে সহ্যই করতে পারে না। তাই তো তিনি ডিবেটে এসে আজান নিয়ে এমন কথা বলল যেগুলো শুনে আপনি মুসলিম হলে রাগান্বিত হবেন। প্রিয় বন্ধুগণ, আপনি অবশ্যই এটা জানবেন যে আমাদের মধ্যে যে স্কলার রয়েছে, অর্থাৎ ইসলামিক স্কলাররা যখন অন্য কোনো ধর্ম নিয়ে কথা বলে তখন তারা সেই ধর্মের জিনিসটিকে নিয়ে বিভিন্নভাবে রিসার্চ করার পরেই কথা বলে এবং তার রেফারেন্স সহ সেগুলোকে নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, সে রেফারেন্সগুলো ভালোভাবে যাচাই বাছাই করে সেগুলোর মুখস্থ করে, অর্থাৎ তার উচ্চারণ ঠিক করে কথা বলার চেষ্টা করে। আপনারা ডক্টর জাকির নায়েককেও দেখেছেন, তিনি কত সুন্দরভাবে বেদ এবং বিভিন্ন অন্যান্য ধর্মের বাইবেল কিতাবগুলোকেও তিনি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন এবং উচ্চারণ করেন। কিন্তু প্রিয় বন্ধুগণ, এই হিন্দু ধর্মের ব্যক্তি যখন আজান নিয়ে আলোচনা করছে, যেটি পুরো বিশ্বে ছেয়ে আছে এবং আজান এমনই একটি প্রসিদ্ধ আওয়াজ যেটি পুরো দুনিয়ার মানুষের কানে কানে গুঁজে। প্রিয় বন্ধুগণ, হিন্দু, মুসলিম, জৈন, খ্রিস্টান ধর্মের সকল মানুষেরাই আজানকে 5 ওয়াক্ত শুনতে পায়। তারপরেও এই হিন্দু ধর্মের ব্যক্তি আজানকে যখন উচ্চারণ করছে তখন তিনি বলছেন আশহাদু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এবং তিনি এই আজানকে সঠিকভাবে উচ্চারণও করতে পারছেন না। প্রিয় বন্ধুগণ, এর মতো হতবাক এবং হতবাক করার মতো বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। আসলে প্রিয় বন্ধুগণ, এদের অ্যালার্জি তো আর আজানকে নিয়ে নয়, বরং মুসলিমদেরকে নিয়ে। মুসলিমদেরকে তারা সহ্যই করতে পারে না। বড় বড় দাড়ি দেখে তাদের জ্বলন হয়। প্রিয় বন্ধুগণ, এই ব্যাপারে আর কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিও ফুটেজটি আমরা সকলে মিলে দেখি এবং ডক্টর জাকির নায়েক আজানকে নিয়ে খুব সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন, সেটিও এই ভিডিওর সাথে শেয়ার করব। তাই অবশ্যই ভিডিওটি একটু স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর ভিডিওটি আপনি দেখার পর আপনার প্রিয়জনকে অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন। তো চলুন আর ভিডিওটি আমরা সকলে মিলে দেখতে থাকি। क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ यह हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है। घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ, लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना। फिर बता रहा हूँ, सुनिए। तो घूम फिर के क्यों पहुंच रहे हैं? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम है। आजान का मैं जिक्र कर रहा हूं। जो आजान जो होती है लोगों को सलाह के लिए बुलाने के लिए, आवाज सुरीली होने के अलावा यह अफसोस की बात है कि बंबई शहर में जो मस्जिदों में आजान होती है, अफसोस की बात है अक्सर ये आजान सुरीली नहीं होती, कान को तकलीफ ज्यादा देती है, रहनुमाई के बदले तकलीफ ज्यादा देती है। आप अगर हरमैन की आजान सुनेंगे, मक्का की या मदीना की, माशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाता है। वो आजान आपको रब की याद दिलाती है। बंबई शहर में जो आजान हम सुनते हैं तकलीफ ज्यादा देती है। सब आजान नहीं, अक्सर हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौज़िन को इकट्ठा करके उनको तरबियत देना चाहिए, प्रैक्टिस देना चाहिए, किस तरीके से आजान देनी चाहिए। क्योंकि आजान के वजह से जब मैं इंटरव्यू करता हूं कई नौ मुस्लिम को, मैं कई नौ मुस्लिम को जानता हूं जो सिर्फ आजान के वजह से इस्लाम कबूल किए। मैं पूछता हूं अक्सर नौ मुस्लिम से, आपको इस्लाम में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या लगी? अक्सर लोग कहते हैं तौहीद और कई चीजें। कुछ लोगों ने मुझसे कहा वो आजान इतनी अच्छी है कि जब भी आजान सुनता हूं मैं, दिल
मेरा बाग बाग हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौज़िन जो है इस शहर में, उनकी तरबियत करें कि किस तरीके से सही आज़ान देना चाहिए। और जैसे मैं कह रहा था कि आज़ान सुरीली होने के अलावा एक पैगाम देती है हमें। अफसोस की बात है कि अक्सर मुसलमान आज़ान की मानी जानते ही नहीं। तो मुसलमान नहीं जानते तो गैर मुस्लिम कैसा जाने। और मैं एक वाक़या आपसे कहना चाहता हूँ, और ये हकीकत वाक़या है। तकरीबन 10-15 साल पहले जब मैं केरला में गया था तकरीर करने के लिए, और ये हकीकत है, मुझे मेहमान खुसूसी बना गया था और मेरे तकरीर के पहले एक गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन को बुलाया था। और अपने तकरीर में हर पॉलिटिशियन जो गैर मुस्लिम में कोशिश करता है कि अगर मुस्लिम गैदरिंग देखता है तो वो तारीफ करेगा इस्लाम की। तो ये गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन तारीफ करते करते कहने लगा कि हमारे इस देश में जो मुसलमान मोगल बादशाह अकबर इतने महान काम किए, इसीलिए मुसलमान रोज 5 बार अल्लाह अकबर करके अकबर बादशाह की तारीफ करते। आप समझ रहे होंगे जोक है, जोक नहीं हकीकत है, और मैं खुद गवाह हूं। मैं स्टेज पे बैठा था, अच्छा मेरे तकरीर के पहले उसने कहा, तकरीर में मैंने उसकी गलतफहमी को दूर किया कि हम मुसलमान जब अल्लाह अकबर बोलते हैं तो अकबर बादशाह की तारीफ नहीं करते। अकबर बादशाह तो मौजूद भी नहीं था उस वक्त, अल्लाह के रसूल के टाइम पे अकबर बादशाह कहां थे। जब अल्लाह अकबर कहते हैं उसकी ये मानी है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। इसीलिए हर मुसलमान का फर्ज है कि कम से कम वो आज़ान की मानी को जाने, ताकि खुद के दिल पे असर हो, और साथ साथ जो लोग को इसकी मानी नहीं पता है, गैर मुसलमानों को नहीं पता है, उन लोगों को इसकी मानी बताए। और आज़ान में हम 4 बार दोहराते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल है। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हय्या लिस्सलाह, हय्या लिस्सलाह, आओ सलाह की तरफ, आओ सलाह की तरफ। हय्या लिल फलाह, हय्या लिल फलाह, आओ फलाह की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ अच्छे काम की तरफ, अच्छे काम की तरफ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब हम आज़ान की मानी को जानेंगे, फिर हमारे दिल पे आज़ान का असर और गहरा पड़ेगा। सिर्फ अरबी नहीं जानने के बावजूद पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर इसकी मानी जाने तो इंशाअल्लाह ये और गहरा असर करेगा आपके दिल पर और आपके दिमाग पर। अल्लाह ताला फरमाते सूरह जुमा में, सूरह नंबर 62 आयत नंबर 9 में, कि जब आप जुमा की आज़ान सुनते हैं तो फौरन जुमा की नमाज पढ़ने की तरफ जाइए, जमात की तरफ जाइए। आज़ान सलाह जो जमात में होती है उसके पहले देना ज़रूरी है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह तहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11 और 12 में, जब मूसा अलैहिस्सलाम आँख की तरफ जाते हैं तो एक आवाज़ सुनते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, ए मूसा अपने पैरों में से जूतियां निकालो, क्योंकि तुम पाक वादी में है, वादी तुआ में। क्योंकि अल्लाह ताला हुक्म देते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को, इस हुक्म का जिक्र है कुरान मजीद में, सूरह तहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11 और 12 में। इसीलिए हम मुसलमान सलाह के पहले हमारी जूतियां निकालते हैं।
তো প্রিয় বন্ধুগণ, দেখলেন ডক্টর জাকির নায়েক কত সুন্দরভাবে আলোচনা করে আজানের ব্যাপারটি মানুষদেরকে বুঝিয়ে দিলেন। প্রিয় বন্ধুগণ, এই ভিডিওর ব্যাপারে আপনার কি মতামত আপনি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে ভুলবেন না। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, বন্ধুদেরকে বেশি বেশি শেয়ার করবেন এবং নতুন দর্শক হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।